everyone, welcome back to Aisha Vlog. How are you all? I hope you all are fine. Today we are going to learn about adjectives. Before that, I want to ask you, like, from so many days I'm asking you, please make an English notebook. Please make an English notebook. I hope till now you all have made your English notebook. So those who have seen my yesterday's video in which I told you about adverb, so I would like to mention it. I have made that video very early when my exams were going to start, but I forgot to upload it because I was so busy, and that's why I was not able to upload it. But now my exams are over and I am having so many plans for you and making the videos, and inshallah I will try to continue making my videos daily. And those who haven't seen my yesterday's video adverb, so please go and check it. And those who have seen, I hope they remember that there was a part of speech which I told you to please note it down in your notebook, and I will. And those who have made it, good, nice. So in that video I mentioned it that for understanding adverb, it is also important to understand adjectives. And in that video I have also told you that then after the adverb we will continue with our adjectives. So today we are just going to study that only. So adverbs are describing words. Now let's learn what are they in briefly. Okay, give me a second. Okay, so what are adjectives? Adjectives are words that describe noun. I hope you all know what are nouns. Yeah, of course you will know because I have told you many things about nouns. So nouns are the names of a person, place, animal, thing or anything. So it describe nouns. मतलब वो nouns के बारे में और बताता है. Like अब कोई person है, माना कोई एक लड़का है, उसके बारे में वो थोड़ा सा बता दिया. Like the boy is good. ही इज अ गुड बॉय. तो जो गुड है ना वो उसको डिस्क्राइब कर रहा है, बॉय को डिस्क्राइब कर रहा है ना वो कैसा है, तो उसको वो डिस्क्राइब कर रहा है. तो यहाँ एज यू कैन सी सम एग्जांपल्स हियर, लाइक द एप्पल इज रेड, and I have put a picture here also that so you can understand easily. So here the apple is noun because name of thing, person, place is called noun, and red is describing it. रेड बता रहा है कि वो एप्पल कैसा है, उससे पता चल रहा है ना कि एप्पल अच्छा है, एप्पल रेड है. सेकंड एग्जांपल देखते हैं. शी हैज अ ब्यूटीफुल ड्रेस. ब्यूटीफुल एडजेक्टिव्स है बिकॉज वो बता रहा है ना कि नाउन क्या है, नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, उसको सोचा हमें समझा रहा है कि वो क्या है. एंड इसमें नाउन हमारा ड्रेस है बिकॉज या you all know what are nouns, so you can easily understand it this. So now we know what are adjectives, and also you can see here an apple which is in red color, which shows that the apple is noun and the red is describing it, which is called adjective. Same in this frog, you can see that the dress is noun and the beautiful is adjective. Next is types of adjectives. Yeah, there are many types of adjectives. Before we go through it, I would like to inform you that like we know what are parts of speech. So I thought that first we would like to complete our parts of speech topics. Like we have completed nouns, adverb, and we are completing adjectives. We are having so many more topics in it, and inshallah in this my weekend I would like to complete all the topics. So first let's complete the adjectives. So let's go back. So there are 5 types of adjectives. Maybe there are more, but for now I have mentioned it only 5. So first is adjective of quality. See, अब आप में कोई अच्छी बात है, आप में कोई क्वालिटी है कि आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत ही ब्रेव हो, आप बहुत ही शाई हो, आप बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट पर्सन हो, तो वो जो
जो वर्ड आपको डिस्क्राइब कर रहा है ना, आपको बता रहा है कि आपकी क्वालिटी क्या है, वो कहलाती है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। लाइक यहाँ देख लीजिए, ब्रेव। ब्रेव बता रहा है ना कि जो कोई भी पर्सन है, माना कोई पर्सन है वो ब्रेव है, तो यहाँ पे ब्रेव हो गया। अब हम एक कोई ले लेते हैं नाम, जैसे मायरा। मायरा इज अ गुड गर्ल। सो उसमें वो बता रहा है ना कि वो कैसी गर्ल है, उसकी क्वालिटी क्या है, वो गुड है, इसलिए उसकी क्वालिटी वही है। लाइक हम एक एग्जांपल ले सकते हैं सिंसियर, कि वो बहुत ही काम, whenever she do her work she is very sincere in it, बहुत ही ध्यान से करती है वो अपने काम, उसमें बहुत ही ज्यादा कंसंट्रेशन देती है, कंसंट्रेट करती है। सो सेकंड इज एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी जो समझ आ रहा है कि कितना, थोड़ा, ज्यादा, कम, वही। तो उसका एग्जाम्पल हो सकता है एनी और सम। तो क्वांटिटी का एग्जाम्पल हो सकता है एनी और सम। सम नहीं, ये वाला सम मत समझ लीजिएगा, ये एडिशन वाला सम जो होता है एस, ठीक है, ये वाला सम नहीं है, सम SOME वाला सम है, ये वाला सम। तो नेक्स्ट इज एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। भाई हम बहुत तेज है, हमें पता चल रहा है, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये नंबर्स को बताता है। एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर्स क्या होते हैं, हमें समझ आ रहा है, ठीक है। तो एक बार बताते हैं। सो एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, लाइक यहाँ पे थ्री एक नंबर है। तो अब मैं आपको जब इसके एग्जांपल्स थोड़े से ब्रीफली दिखाऊंगी तो आपको समझ आएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो यहाँ पे हो गए 3, हो गए 1, हो गए, ये एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर्स है ना। मैं आपको जब एग्जांपल्स दिखाऊंगी ना तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। नाउ इज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, ये भी मैं समझाऊंगी, बट अभी इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। लाइक दिस एंड दोस। नंबर्स में क्या होता है, 3 और 1, लाइक नंबर्स 1 2 3 सबको आता है। क्वांटिटी में क्या होता है, उसकी क्वांटिटी बताती है, वो कितना है, थोड़ा सा है, ज्यादा है। क्वालिटी में बताता है कि वो कैसा है। मैनर का वर्ड सुना है ना, कि एडवर्ब ऑफ मैनर्स हमने पढ़ा था, तो वो एक ऐसा ही टाइप का है, बट वो उसको बताता है कि वो उसकी क्वालिटी क्या है, अच्छी बुरी चीजें जो भी हैं वो उसमें आती हैं। नाउ इज इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स। तो जब भी हम कोई क्वेश्चंस पूछते हैं तो हम कुछ वर्ड्स ऐसे यूज करते हैं, लाइक व्हाट इज योर नेम, विच इज योर फेवरेट फूड, ऐसे कुछ क्वेश्चन जो वर्ड्स हम यूज करते हैं ना क्वेश्चन के लिए, वो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं। लाइक यहाँ पे है व्हाट एंड विच, हम इसके बारे में जानते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। उससे पहले जो मैंने आपको बताया था व्हाट आर एडजेक्टिव्स, प्लीज उसे अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, ठीक है। तो और मैं अब ये जो एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी का सारा बता रही हूँ उसको भी नोट डाउन कर लीजिए अपनी नोटबुक में, बिकॉज ये आपको हेल्प करेगा बहुत ज्यादा। मैं हर वीडियो में बताते हुए आई हूँ, प्लीज मेक अ नोटबुक, प्लीज मेक अ नोटबुक, एंड दिस टाइम ऑल्सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज मेक अ नोटबुक। तो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट। तो नाउ हम इस टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव को एक्सप्लोर करते हैं, इसमें क्या क्या है, इसका असली मतलब क्या है। तो मैंने यहाँ पे कुछ आपको पिक्चर्स भी दिखाया ताकि आपको इजी समझ आए कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो पहला है हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। भाई हमने इसी स्लाइड में इतना समझ लिया है कि हमें आगे वाली स्लाइड को देखने की जरूरत ही नहीं, बट गो थ्रू कर लेते हैं। तो हाँ, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी टेल्स अबाउट द क्वालिटी ऑफ अ पर्सन और थिंग। वही जो मैंने आपको बताया, वो हमें बताता है कि वो पर्सन की क्वालिटी बताता है कि वो पर्सन कैसा है, ब्रेव है, गुड है, कैसा है। जैसे यहाँ पे आप एग्जांपल्स देख लीजिए। फॉर एग्जांपल, इंडियन आर्मीज आर ब्रेव। तो यहाँ पे जो ये ब्रेव वर्ड है ना, ये हमारा क्या है, ब्रेव वर्ड हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। ये बता रहा है कि इंडियन आर्मी जो है ना बहुत ब्रेव है। तो इसमें हम लाइक नाउन क्या हो सकता है, इंडियन आर्मी, नाउन हमारा इंडियन आर्मी होगा। अब वो आप सबको पता है क्यों, क्योंकि नाउन्स क्या होता है, बहुत ईजी है।
तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है मारिया इज अ गुड गर्ल। तो अब वो मारिया की क्वालिटी बता रहा है ना कि वो अच्छी है, गुड है। तो मारिया इज अ गुड गर्ल एंड मारिया नाउन। इजी, इजी टू अंडरस्टैंड। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो अब है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। सो हियर इज एन एग्जांपल। पहले समझते ये है क्या। An adjective of quantity tells how much of a noun is being referred to. ये वही बताता है कि कितना जो नाउन है ना उसमें कितना उसके बताता है कि अब जैसे आप एग्जांपल देखिए, he did not eat any bread. He did not eat any bread. Any क्वांटिटी बता रहा है ना कि वो थोड़ा है, ज्यादा है, कम है। बट एक चीज याद रखना, जब भी हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में लिखते हैं ना, सो हम कभी ऐसा नहीं करते हैं। हम ऐसे लिखते हैं, हम उसमें कभी भी नंबर्स नहीं लिखते हैं। एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स में हम नंबर्स ऐड करते हैं, बट एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में हम नंबर्स नहीं ऐड करते हैं। हम वर्ड्स ऐड कर सकते हैं, ऐड करते हैं। लाइक हो गया एनी, हो गए सम, हो गए। सेकेंड एग्जाम्पल इज आई नीड सम मनी। तो जैसे अब ये एक ब्रेड है, तो वो कह रहा है ही डिड नॉट ईट एनी ब्रेड, वो कोई भी ब्रेड नहीं खाता है। आई नीड सम मनी, जैसे यहाँ पे ये मनी है, मुझे कुछ मनी चाहिए, आई वॉन्ट द मनी। अब जैसे मुझे मनी चाहिए तो मैं मांगूंगी, तो अब मुझे कितना चाहिए, थोड़ा चाहिए होगा ना, तो उसके लिए मैं एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी में जाएगा, क्योंकि मैं बता रही हूँ मुझे कितना चाहिए, सम थोड़ा चाहिए। अगर आप इस वीडियो को सुनेंगे तो आपको वो वाला सम लगेगा, SUM, जो एड वाला होता है, वो रॉन्ग है। सम अलग है, SOME। बोलने में तो प्रोनाउंसिएशन लोग का सेम है, बट वर्ड डिफरेंट है। यू नीड टू कीप दिस इन योर माइंड। सो नेक्स्ट, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। क्वांटिटी में हम नंबर्स नहीं ऐड करते हैं, नंबर्स में हम नंबर्स ऐड करते हैं, बट क्वांटिटी वाले वर्ड्स नहीं ऐड करते। तो इट टेल्स अबाउट हाउ मेनी पर्सन और थिंग्स आर देयर। ये हमें बताता है कि वहां पे कितना, वो बता रहा है ना, नंबर्स बता रहा है कितना है, थिंग या पर्सन जो भी है कितना है। तो अब एग्जांपल्स को भी देख लेते हैं एक बार। द बॉक्स कंटेन्स 5 पेन्स। तो इसमें हमारा 5 क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स, क्योंकि ये नंबर है एंड ये हमें बता रहा है ना कि कितने हैं। जैसे अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ I have shown here 3 pens, but you can think like, wait, but you can think like there is one more pen and one more pen. So they are total 5 pens. They are total 5 pens. तो अब ये जो 5 पेन है ना, तो इसे हम, तो ये एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर्स में जाएगा, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर्स में जाएगा। और अब हम नेक्स्ट वाला जो है, तो ये एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर्स में गया। 5 क्या है, पेन्स, तो 5 एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स में है। नेक्स्ट वाला भी पढ़ लेते हैं। There is 12 mangoes. There is 12 mango trees in my garden. 12. 12 is a number. 12 is a number. So there are 12 mango trees in my garden. So as you can see here a tree. तो यही ट्री है, इसको मान लीजिए ये टोटल कितने ट्रीज हैं, 12 ट्रीज हैं। मेरे में इतना स्पेस नहीं था तो मैंने पूरा ट्रीज नहीं बनाया, मैंने एक बना दिया, सेम मैंने पेन से। तो ये टोटल 12 ट्रीज होंगे। तो इससे पता चल रहा है ना एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर्स हैं। ये नाउन को बता रहा है, इसमें नाउन क्या होगा, मैंगो होगा, मैंगो को बता ट्रीज मैंगो होंगे, तो ये बता रहा है ना कि हाँ ये जो है ना वो कितने हैं। सेम हम जब क्वांटिटी में देखेंगे तो ब्रेड हमारा आ गया, हमारा क्या कहते हैं, नाउन। अब ये बता रहा है कितना, एनी, सम, मनी हमारा नाउन हो गया, बता रहा है थोड़ा सा, इसीलिए। सो वी आर डन विद इट। नेक्स्ट इज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो पहले समझते ये है क्या, फिर इनके एग्जांपल्स देखेंगे। मैं अभी तक जितना कराते हुए आई हूँ, लाइक एडजेक्टिव्स ऑफ
क्वालिटी, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, एडजेक्टिव्स ऑफ, आप डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव करेंगे, फिर हम इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव करेंगे, फिर वी विल डन विद इट। आई थिंक वी आर गोना डन विद इट। तो प्लीज ये सारा नोट डाउन करते रहिए, इनकी डेफिनेशन नोट करिए। एंड बेस्ट थिंग ये हो सकती है कि जो मैं आपको एग्जांपल्स दिखा रही हूँ ना, आप उसका एक काम करिए, आप वो एग्जांपल्स को लिखिए एंड खुद से एग्जांपल्स बनाइए उसी से रिलेटेड, आपको समझ आएगा। आप अगर एग्जाम में कुछ आता है तो आप खुद से आप अपने वाले एग्जांपल्स को याद करिए, आपको इजी रहेगा बहुत। तो पहले डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है देखते हैं। अ डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव पॉइंट्स आउट which noun you are talking about। ये बताता है कि किस नाउन के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब जैसे मैं एग्जांपल दे देती हूँ, हाँ कि ना, हाँ एक मॉल है, बहुत बड़ा मॉल है, तो उसमें ना बहुत सारे सेक्शंस हैं, साइजेस हैं, लाइक ड्रेसेस के साइज हो गए, टी शर्ट के साइज हो गए। तो एक तरफ है 12 XL, L, XX, XXL, ऐसे से तीन माने तीन हैं। तो या माना कि एक ये है, एक ये है, एक ये है, रो है शर्ट्स के। तो इसका होगा XL, X और XL, और यहाँ पे ट्रिपल X और L मान लिया, ठीक है। ये मैं आपको अपने तरफ से एग्जांपल दे रही हूँ, बाकी ये आपको समझ आ रहा है। तो वो जो 3 है ना, तो आप बहुत दूर खड़े हो, माना सॉरी, हाँ माना बहुत दूर खड़े हो और आप किसी को कहना चाह रहे हो कि वो वाली जो रो है ना, वो वाली रो, उसमें मेरे साइज के क्लोथ्स हैं पूरे। तो अब वो वाली के लिए इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे? Those rows, in that rows I'm having my size of t-shirts in that। so इसमें से तो किसी में तो एक में होगा, तो वो that का यूज करेगा कि इनमें से बताए कि ये वाला है या ये वाला है या ये वाला है, वो बताने के लिए। तो that इसमें हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया, हो जाएगा। तो अब वो क्या, अब आप ये जो मैंने लाइन लिखी है इसके थ्रू समझिए। अ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स पॉइंट आउट, पॉइंट, हमने पॉइंट आउट नहीं किया कि वो वाली रो, वो वाली रो हमारी मेरे टी शर्ट के साइज रखती है वो वाली, तो हमने पॉइंट किया कि वो ही वाली रो। पॉइंट्स आउट नाउन अबाउट विच यू आर टॉकिंग, आप किस नाउन के बारे में बात कर रहे हो वो वाली को पॉइंट आउट करता है। अब यहाँ पे एग्जांपल्स हैं, उसका एक बात देख लेते हैं। तो दिस चाइल्ड हैज बीन इल, तो ये दिस चाइल्ड का ये वाला एग्जांपल है, एक मिनट, हाँ दिस चाइल्ड का ये वाला एग्जांपल है, ये चाइल्ड है जो बीमार है, तो इसमें नाउन है चाइल्ड। दिस पॉइंट आउट कर रहा है ना ये वाला चाइल्ड। अब माना यहाँ पे 2-3 चाइल्ड, चलो 1 2 3 अच्छा 5 बच्चे हैं, पांचों में से 4 बहुत ही हेल्दी हैं, ठीक है, उनको कुछ नहीं हुआ है, वो आराम अच्छे हैं। बट उनमें से जो एक बंदा है ना, ये वाला, ये बीमार है, तो हम इसको पॉइंट आउट करेंगे ना कि ये वाला जो है, ये वाला ये बीमार है। तो इसके लिए हमने दिस यूज किया, यहाँ पे हमने दिस यूज किया कि दिस चाइल्ड हैज फॉलन इल, तो इसमें हमने दिस यूज कर लिया। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल के लिए हम इसको लेते हैं, एक मिनट, नेक्स्ट एग्जाम्पल ये ग्रुप, ये बच्चों के ग्रुप के लिए, दोज आर माई फ्रेंड्स। चलो माना कि यहाँ पे एक ग्रुप है, ये देखो 3 बच्चों की एक ग्रुप, ठीक है, 3 बच्चों की एक ग्रुप, फिर ऐसे यहाँ पे 2 ग्रुप बनेगी, फिर थर्ड ग्रुप बनेगी। तो अब एक लड़का है, वो बताना चाह रहा है कि कौन मेरी ग्रुप के मेरे दोस्त है, तो बोलेगा ना कि वो वाली, दोज आर माई फ्रेंड, वो मेरे दोस्त हैं, वो मेरे दोस्त है ना, तो वो यूज कर रहे हैं ना, तो ये दोज हुआ कि वो मेरे दोस्त हैं, तो दोज यूज किया। तो अगर आप लाइन को ही अच्छे से समझेंगे तो आप बहुत इजीली समझ पाएंगे कि मैं
क्या कहना चाह रही हूँ, मैं क्या पॉइंट आउट करना चाह रही हूँ। बहुत इजी है ये कॉन्सेप्ट। यू नीड टू जस्ट अंडरस्टैंड द लाइन्स व्हिच आई हैव written here. देन मैं आपको टास्क देती हूँ। आपको अपने से लगभग क्या 8 एग्जाम्पल्स बनाने हैं। ऐसे जिस तरह मैंने बनाया ना, आपको ऐसे 8 एग्जाम्पल्स बनाने हैं। 8 एग्जाम्पल्स बनाने हैं, कोई चीटिंग नहीं, सब पूरा करेंगे, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट पे जाते हैं। आई थिंक हाँ, इसके बाद हमारी ये वाली हमारी लास्ट है। सो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स ये क्या होते हैं? हमने एग्जाम्पल्स पढ़ा था ना वहाँ टाइप्स वाले में, तो ये वही है। इट इज यूज्ड विथ नाउन टू आस्क क्वेश्चन। ये नाउन के साथ यूज होता है जब हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं। ये नाउन के साथ यूज होता है जब हम कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। लाइक यहाँ पे देख लीजिए, हुज कार इज दिस। कार हमारा क्या हुआ? नाउन हुआ। हुज ये किसकी कार है? हुज हमारा इंट्रोगेटिव में चला गया। हुज हमारा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हुआ। ये जो मैंने डार्क रेड किया है ना, ये इंट्रोगेटिव के, ये वर्ड्स इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स हैं। तो विच काइट डू यू वांट टू बाय? काइट हो गया हमारा नाउन। विच कौन सी पतंग तुम खरीदना चाहोगी? तो इसमें यही बोल रहा है ना, कौन सी पतंग तुम खरीदना चाहोगी। विच काइट डू यू वांट टू बाय। तो विच तो यही हुआ ना कि कौन सी पतंग तुम खरीदना चाहोगी। तो इसका मतलब यही हुआ। जैसे अब ये कार है, तो अब ये एक लड़का पूछ रहा है ये किसकी कार है। वो क्वेश्चन पूछ रहा है ना कि ये किसकी कार है, तो हम इसके लिए दोज यूज कर देंगे। किसकी कार है, दोज यूज करेंगे। और पूछ रहे विच काइट डू यू वांट टू बाय। अब जैसे ये एक पतंग है, यहाँ पे एक और पतंग ला लो, यहाँ एक और डालो, यहाँ एक और डालो, 4-5 पतंग है। दुकान जब हम जाते हैं तो पूछे कौन सी पतंग तुम खरीदना चाहोगी। तो इन चारों में से कोई वो एक ही खरीदना चाहेगी या 2-3 खरीदना चाहेगी, बट वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना। जिसमें नाउन हो गया हमारा काइट एंड इंट्रोगेटिव हो गया हमारा विच। तो ये इजी था अंडरस्टैंडिंग के लिए। समझ आया सब? बहुत अच्छा। Also, thank you for watching. If you find this video helpful and useful, so please like and subscribe. Please, मेरी ज़ुबान को क्या हुआ? So please like and subscribe. And for today, this much. Please make a notebook and the homework that I have give you, like write type सारे types of adjective के लगभग 8 एग्जाम्पल अपने से बनाओ, ठीक है। यहाँ पे मैंने 5 दिए हैं, पांचों के आप लगभग 8 बनाएं अपने से। 8 बनाएंगे, जितने हो जाएंगे अपने 40 एग्जाम्पल आप अपने से बनाएंगे सबके। अगर आप 8 बनाएंगे, 8 नहीं तो मान लो 5 ही बनाऊंगा एटलीस्ट। बट मेरे वाले को इंक्लूड मत करना, मैंने सब में एटलीस्ट 2 तो दिए हैं, तो मेरे वाले को इंक्लूड मत करना, एक्स्ट्रा 5 बनाना, ठीक है। तो फॉर टुडे दैट्स इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।